جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی کر لوں۔ زندگی کی خبر نہیں، جو ملا ہے لٹانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ کچھ لے کر جانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی مومن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے، ادھار کو لوٹانا مومن کے مزاج کا حصہ ہے۔ ایک پرانی اور کالی رات میرے سامنے ہے جب میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا اس میں ذات کا ذکر کر رہا تھا۔ سردی کے دن تھے اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا لیکن میں پسینہ پسینہ تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے قریب کسی نے آ کر اپنا گھٹنا لگا دیا اور سلام کیا۔ ہلکا سا خوف ہوا لیکن پھر ایک اطمینان ہو گیا۔ دیکھا تو ایک خضر صورت درویش بیٹھے ہیں۔ مصافحہ ہوا۔ میں نے پوچھا آپ؟ فرمانے لگے لوگ مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ ان سے میری سب سے پہلی ملاقات تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ لفظ اسم ذات یعنی اللہ جو میں نے لاکھوں کروڑوں مرتبہ کیا، یہ اس کی برکات ہیں۔ اس کی برکات تو مجھے بہت ملی، وہ پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن اس کی ایک برکت یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے میں نے بہت پایا، بہت حاصل کیا۔ ایک چیز جو گزشتہ صفحات میں آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں وہ یا قہارو ہے۔ آج میں یا قہارو کے روحانی و نورانی فوائد حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بار فرمانے لگے جو شخص اس کو بکثرت پڑھے گا، جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو اور وہ اس گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، جتنی بڑی سے بڑی برائی ہو، نشہ ہو، کوئی عادت بد ہو، کوئی عیب اور وہ اس عیب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، وہ بلا تعداد اس کو مستقل پڑھے۔ جتنا زیادہ تعداد میں پڑھے گا اتنا فائدہ ہوگا، لاکھوں سے زیادہ پڑھے۔ بس ہر وقت پڑھتے ہوئے یہ تصور یعنی جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو اس کا تصور کرے۔ وہ نہیں پڑھا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھے، لیکن بات ہے پڑھنے کی۔ چند بار پڑھ کر چھوڑ دینا ایسا نہ ہو۔ یہ بات مسلسل تجربات میں آئی ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنے سے گوہر مقصود ضرور ملتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ہیروئن چھوڑتے دیکھی، بدکاری سے نفرت دیکھی، جھوٹ گناہوں سے نفرت دیکھی۔ ایک نہیں بے شمار نہیں بے شمار سے لوگ اسم یا قہاروں سے متقی، ولی اور اللہ کے دوست بنتے دیکھا۔ اللہ کی دوستی اور اللہ کی قرب اور اللہ کی محبت یا قہاروں کے سامنے ایک انوکھا راز ہے۔ میں نے ایک صاحب کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا، کہنے لگے میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، صبح دیکھی نہ شام، نیند دیکھی نہ جاگنا، ہر صورت یا قہارو پڑھتا چلا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں یا قہارو پڑھا۔ میں وہ تھا جو کماتا تھا جوئے میں لگا دیتا تھا، پھر جو بچتا تھا شراب میں لگا دیتا تھا اور بدکاری پر لگاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا لفظ کہیں پایا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اب رات کو سوتا ہوں تو تہجد کے وقت مخصوص مہک اور خوشبو ہوتی ہے جو میرے بدن کو لپیٹ لیتی ہے، اور مسرور ہوں کہ میں ایک خوشبو مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ پھر تہجد کے بعد سوتا ہوں تو وہی خوشبو مجھے نماز فجر کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ اسی طرح میرے دن رات گزر رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب میں عید کی نماز تک نہیں پڑھتا تھا، جمعہ تو دور کی بات، جب مجھے اللہ کے نام سے شناسائی نہیں تھی۔ میں بھٹکا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اس میں یا قہار نے مجھے اللہ تک پہنچانے میں بہت مدد کی۔ قارئین ویران گھروں اور اجڑی زندگی کے لیے اسم یا قہاروں کے اندر بہت تاثیر اور طاقت ہے۔ اس کے اندر تقویٰ ہے، عظمت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، تہجد ہے، نماز کا خشوع ہے، قرآن سے محبت ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عشق صحابہ اہل بیت ہے، عشق اولیاء ہے، ساحلین سے محبت ہے۔ یہ کوئی شے نہیں، عجب شے ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا چلا جاتا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، بس آگے آپ خود سمجھ لیں کہ جب بھی میاں بیوی ملاقات کا ارادہ کریں، دونوں ملاقات سے پہلے بکثرت اسم یا قہارو پڑھیں۔ اولاد صالحہ ہوگی، بے عیب ہوگی، اندھی کانی لوہلی لنگڑی اپاہج نکارہ بیوقوف پاگل دیوانی بد شکل نہیں ہوگی۔ جہاں حسن ظاہر ہوگا وہاں حسن باطن بھی ہوگا۔ خوبصورتی جہاں اندر کی ہوگی وہاں باہر کی بھی ہوگی۔
बच्चे में तकवा, इखलास, खलूस, नेकी, अमानत, खैर ख्वाही, दरिया दिली, सखावत और मोहब्बत के आसार नुमायां होंगे। वैसे भी मियाँ बीवी जब मिलें और इन अल्फाज को थोड़ा या ज्यादा इससे पहले पढ़ लिया करें। शैतानी अमल दखल नहीं होता, बीमारियां नहीं होती, हत्ता कि आपस में नफरत नहीं होती। मैंने घरेलू झगड़ों के कई लोगों को ये बताया कि मियाँ बीवी जब भी मिलें थोड़ा या ज्यादा इसम या कहारो जरूर पढ़ लिया करें। इस वक्त वुजू है या नहीं इसकी कोई शर्त नहीं। फिर इसकी बरकत को अपनी आंखों से मुशाहिदा करें। बहुत कमाल की चीज है। ये एक राज था जो दिल की दुनिया में बसा हुआ था, जो मुझे मिला था सो आप तक लौटा दिया। ना मालूम क्यों मुझे या कहारो के वजीफे से इतनी ज्यादा मोहब्बत है। दरअसल ये मोहब्बत इसके फायदे की वजह से है। इसका फायदा इतना ज्यादा है कि मैं जिन्नात भी हैरान हैं। अल्लाह पाक के इस नाम में जहाँ तकवा, तहारत, गुनाहों से बचने का अक्सर अमल है, वहाँ जादू, असरात और खुद शरीर जिन्नात से बचने के लिए एक नाकाबिल यकीन हथियार का काम देता है। जब से या कहारों के फवाइद मैंने बताने शुरू किए, इस दिन से जहाँ नेक और साले जिन्नात में एक खुशी की लहर दौड़ी, वहाँ शरीर और शैतान जिन्नात बहुत परेशान हैं। चूँकि मेरी तहरीर अबकरी में छपती है और फिर ये अबकरी इंसानों के अलावा जिन्नात भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जिन्नात इन तहरीरों को बहुत तवज्जो से लेते हैं। अभी पिछले दिनों एक जिन से मुलाकात हुई। कहने लगे कि मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा वो क्या? कहा बात यह है कि आपने जब से या कहारों के फवाइद बताए हैं और शाही किले की मोती मस्जिद का अमल बताया है, इससे जहाँ शाही किले के बोने जिन्नात को खुशी पहुँची है, वहाँ शाही किले के इस कोने में जो कोना शाही महल्ला यानी हीरा मंडी की तरफ लगता है, वहाँ के काले और खबीस जिन्नात का बहुत क़याम है और वो खबीस मोती मस्जिद में आने वालों को नापसंद करते हैं। वो इनका रास्ता नहीं रोक सकते क्योंकि मोती मस्जिद में आने वाले नेक जिन्नात हर मोती मस्जिद में आने वाले फ़र्द का इस्तकबाल करते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। हत्ता कि बाज़ लोगों के वाक़यात सामने आए हैं कि मोती मस्जिद में आने वाले लोगों को जिन्नात ने घर पहुँचाया, इन्हें खाना मुहैया किए, इन्हें सवारी मुहैया की, हत्ता कि इनके मसाइल और मुश्किलात के हल में इनका साथ दिया। वो जिन कहने लगा इन काली और शैतानी चीज़ों को बहुत परेशानी है। तो मैंने इनसे पूछा कि आखिर इन्हें क्या परेशानी है। कहने लगे कि एक तो वो मोती मस्जिद के नवाफिल से बहुत खाइफ हैं क्योंकि वो नवाफिल खबीस जिन्नात के सामने दीवार बन जाते हैं और वो किसी किस्म की जादू बंदिश के अमल को नहीं कर सकते और हर बंदिश और हर जादू में इनका कोई अमल दखल नहीं हो सकता, हत्ता कि जादू टूट जाता है। दूसरा वो शरीर जिन्नात हर आने वाले फर्द जो हीरा मंडी का रुख करता था इसको गुनाहों की राहों पर चलाते थे, बल्कि हीरा मंडी में सारे काले और शरीर जिन्नात हर वक्त दनाते फिरते रहते हैं और इनका अमल दखल सदियों से है। उन्होंने शाही किले के इस कोने को, जिस तरफ अब शाही किले के बैतुल खला बने हुए हैं, इस कोने की तरफ उन्होंने अपना अड्डा कायम किया हुआ है और वो वहाँ से पूरे शाही महल्ला यानी हीरा मंडी को कंट्रोल करते हैं। वहाँ आने वाले हर फर्द के अंदर फसक, फजूर और गुनाहों की तरफ आमादा करते हैं और इसे वहाँ की गंदगी को सजा कर दिखाते हैं। मुझे इस जिन ने बताया कि जब से वहाँ फूड स्ट्रीट बनी है, इस दिन से शाही महल्ले के खबीस जिन्नात की खुशियाँ और ज्यादा हो गई हैं कि इन्हें खाने पीने को मिलेगा और जो भी वहाँ खाने को आएगा इसे गुनाहों का जहर, जुल्मत का जहर और मुसीबत का जहर भी साथ देंगे। इस जिन ने एक अनोखा इंकशाफ किया कि काले और खबीस जिन्नात के पास एक गुर होता है कि जब इंसान खाने बैठता है और वो खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े या बिस्मिल्लाह व अला तवक्कलतु अलल्लाह ना पढ़े तो वो इस खाने में अपने जिस्म के पसीने की नहुसत डाल देता है या जिस्म के ऊपर की मैल डाल देता है। इंसान वो खाना खा रहा होता है लेकिन इसको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो खाना एक अनोखा जहर बन चुका होता है, अनोखी बर्बादी बन चुका होता है और वो अनोखा जहर इस बंदे के अंदर जहाँ अनोखी बीमारियां पैदा करता है और ला इलाज बीमारियों का जरिया बनता है, वहाँ वो खाना इस बंदे का जहन गुनाहों और अयाशी की तरफ लाता है।
नमाज, तस्बीह, रोज़ा, दरूद शरीफ, कुरान पाक की तिलावत, हत्ता कि अल्लाह और अल्लाह वालों से इसके दिल में नफरत पैदा करता है। ये इन जिन्नात का खास कमाल है। मैं हैरान होकर इस जिन की बातें सुन रहा था कि इसी दौरान शाही किले के बोने जिन्नात मेरे पास आए। कुछ तहाइफ लाए और कहने लगे, आपने अबकरी रिसाले में क्या लिखा है? मैंने पूछा, क्या? कहा कि हमारा इंकशाफ और हमारी मुलाकातें आपने बयान कर दी। कहने लगे, इससे हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं, बल्कि हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि सदियों से पुरानी वीरान मोती मस्जिद ऐसे आबाद हुई कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम इस मस्जिद को 5 वक्त आबाद किए हुए हैं। एक मजबूत जमात मुस्तकिल इसमें जिक्र, मुराकबा, इत्तिकाफ में बैठी है और हर वक्त मोती मस्जिद में हम बोने जिन्नात की जमात 3 अमल करती रहती है। रात के पहले पहर में एक जमात मुसलसल मुराकबा करती है। वो जमात मुराकबा और दुआ के बाद चली जाती है, जो कि लाखों बोनों की शक्ल में मुश्तमिल होती है। दूसरी जमात जो लाखों बोनों की तादाद पर मुश्तमिल होती है, आकर नफल और जिक्र करते हैं। फिर नमाज फजर पढ़ते हैं और नमाज फजर से लेकर इशराक तक वो मुसलसल जिक्र करते हैं और दरूद शरीफ का जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर वो जमात चली जाती है। फिर एक जमात इशराक के बाद आती है, जो कि लाखों जिन्नात पर मुश्तमिल होती है। वो जमात आकर वहाँ मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करती है और हज़ारों कुरान रोज़ाना ख़त्म करती है। ज़ोहर तक ये जमात रहती है। ज़ोहर के बाद एक और जमात आती है, जो कि वहाँ आकर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ती है और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजती है। और ये जमात मगरिब तक रहती है और फिर इसी तरह दूसरी जमात की ड्यूटी शुरू हो जाती है। सदियों से ये रवायत जारी है। जब से ये मोती मस्जिद बनी है, एक बोने जिन ने मुझे अजीब बात बताई कि शाही किले से पहले भी हम यहाँ आबाद थे। शाही किला तो अभी कल की बात है कि बना है। मैं हैरान हुआ। कल की बात है? कहा, हाँ, चंद सदियों की ही तो बात है। यहाँ टीले हुआ करते थे और इन टीलों से पहले यहाँ दरिया रावी बहता था। फिर दरियाए रावी ने अपना रास्ता बदला और दूर चला गया। दरिया ने अपना रुख बदला तो हम यहाँ आकर आबाद हो गए। हमारी नस्लें यहीं आबाद हुईं और अब भी आबाद हैं। सदियों जिंदगियां गुजार कर यहीं फौत हो गई। हमारे यहाँ एक असूल है, जो भी हमारे पास आता है हम इसकी मेहमान नवाजी ज़रूर करते हैं। इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। या तो हम इसकी किसी मुश्किल में इसका साथ देते हैं, या अगर इस पर कोई जादू असरात बंदिश होते हैं तो इसके लिए हमारे पास मोती मस्जिद में बहुत बूढ़े बाबे हैं जो इस पर दम कर देते हैं। इसका मसला हल हो जाता है और इंसान को इसका एहसास ही नहीं होता। या फिर अगर इसकी कोई उलझन, घरेलू मुश्किल किसी भी किस्म की हो, इसके लिए दुआ करते हैं और इसके साथ चल पड़ते हैं। वाकई कारीन, मोती मस्जिद हजारों लाखों लोगों के और इनमें से बेशुमार लोगों की इतलात मुझे जिन्नात के जरिए मिली कि इनके साथ ऐसा हुआ है और वो नेक बोने जिन्नात ने इनके साथ ऐसी मदद और मोहब्बत की है। वही बूढ़ा बोना जिन मुझे कहने लगा कि मोती मस्जिद से पहले भी यहाँ मस्जिद होती थी। यहाँ एक टीला था जिसे हमने मस्जिद बनाया। जिस वक्त किला बनने लगा तो नक्शे के मुताबिक ये जगह बादशाह की दीवान आम के लिए मुकर्रर हुई। तो ख्वाब में हमने बादशाह को बताया कि ये जगह दीवान आम के लिए मुकर्रर ना करे, वरना नुकसान उठाएगा। और ये मस्जिद है और मस्जिद क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। हमने मस्जिद ही में रहते हैं और मस्जिद को ही पसंद करते हैं। बादशाह ने हमारे इशारे से यहाँ मस्जिद की तमीर का हुक्म दिया। पहले कुछ तमीर हुई थी, इसको तोड़ दिया गया और यहाँ खूबसूरत मस्जिद बनाई गई। वो दिन और आज का दिन है। हमने इस मस्जिद को अपनी मस्जिद समझा है। इस मस्जिद को हम खुशबुओं की धुनियाँ देते हैं जो शायद इंसानों को समझ ना आए। जैसे इंसान हमें नहीं देख सकते, इसी तरह इंसान हमारी खिदमत को भी नहीं देख सकते। हम मुसलसल इस मस्जिद की खिदमत करते रहते।